નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર આપણે પ્રકરણ નંબર 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે તેની આપણે એક વિડીયોમાં પ્રથમ ભાગના રૂપે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે, જેમાં આપણે સૌથી પહેલાં તો એમના બચપનની કોઈ યાદગાર ઘટના વિશે ચર્ચા કરી. એના પછી આપણે માતૃભાષાને પ્રમુખતા દેવી જોઈએ, બરાબર છે. બચપનમાં કઈ ભાષાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ એના વિશે ચર્ચા કરી. એના પછી આપણે હમ યાની કે આપણે ડૉક્ટર કલામના જેવા બનવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે આ પ્રકરણને આગળ આપણે વધાવીશું. પ્રશ્નો કરતા છે चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी यानी कि पश्चिम मुंबई. इस विद्यार्थी ने डॉक्टर कलाम को सवाल किया, प्रश्न किया, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है. ये विद्यार्थी नहीं है, ये विद्यार्थी है जैन, चिराग जैन, यानी कि पश्चिम मुंबई का है. ये बॉम्बे कैम्ब्रिज विद्यालय का ये स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिन्होंने प्रश्न किया डॉक्टर कलाम से कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका जवाब देते हुए कहते हैं, डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है. यानी कि ये जो આ વિદ્યાર્થી છે એમણે એવો પ્રશ્ન કર્યો કે ભારતની સામે કઈ એવી મોટામાં મોટી ચુનૌતી છે કે જે આપણે જેનો સામનો આજે આપણે કરી રહ્યા છે. તો ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ એવો જવાબ આપે છે કે ભારત 2020 સુધી એક વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપમાં ઉભરી આવશે, યાની કે પરિવર્તિત થઈ જશે. એ વિકસિત રાષ્ટ્ર, અત્યારે આપણે વિકાસશીલ દેશ છે. તો જે સમયે ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ રાષ્ટ્રપતિ હતા તે વખતનો આ પ્રશ્ન છે. તમે અત્યારની વાત ના કરતા, અત્યારે 2021 ચાલી રહ્યું છે, પણ જ્યારે ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ રાષ્ટ્રપતિના દરજ્જા પર પદ પર હતા ત્યારે આ પ્રશ્ન એ વિદ્યાર્થીએ એમણે કર્યો હતો અને એમણે જવાબ આપેલો કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપમાં પરિવર્તિત થઈ જશે, યાની કે વિકસિત દેશ બની જશે. અત્યારે જે વિકાસશીલ દેશ છે તેના બદલે ભારત 2020 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે. દેશની જનતા યાની कि देश में जो वस्ती है ते 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान होगी, यानी कि 1 अरबથી વધારે લોકો દેશની અંદર વસવાટ કરી રહ્યા છે અને એમના ચહેરા પર મુસ્કાન यानी कि स्माइल मुस्कान देखना मिलेगा. यही राष्ट्र के समक्ष यानी कि आज राष्ट्રની સામે મોટામાં મોટી ચુનૌતી છે. બીજો સવાલ કરે છે આગળ. પ્રશ્ન કરતા હર્ષ ચાંડક, कक्षा 7, डॉक्टर S राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई. इस विद्यार्थी ने आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. डॉक्टर कलाम को ये बालक सवाल करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. ये विद्यार्थी है डॉक्टर S राधाकृष्णन विद्यालय का विद्यार्थी है और जिसका नाम है हर्ष चांडक और 7वीं कक्षा में अभ्यास करता है. ये विद्यालय कहाँ पर आई है? मलाड और मुंबई में. उन्होंने सवाल किया कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सवाल करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा, आप साहस किसे कहते हैं, તમે સાહસ કોને કહો છો, એવો પ્રશ્ન કરે છે વિદ્યાર્થીએ ડૉક્ટર કલામને.
ડૉક્ટર કલામ એનો જવાબ આપે છે, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यहाँ पर संकट यानी कि मुसीबत, संकट का मतलब क्या होता है तो कि मुसीबत, और आपदा जिसका मतलब भी मुश्किल मुसीबत ये होता है। और डॉक्टर कलाम जवाब देता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना यानी कि પોતાના જીવનનો પરવાહ यानी कि પોતાના જીવનની પરવાહ કર્યા વગર જે બીજાને મુસીબતના સમયમાં બચાવી લે છે, મૃત્યુના મોંમાંથી બચાવી લે છે, એને જ સાહસ કહેવાય। પોતાના જીવને જોખમમાં નાખીને ઘણા લોકોના જીવનમાં એવી ઘટનાઓ ઘટી જાય છે કે એ પોતાના જીવનને બાજી પર લગાવી દે છે અને બીજાનો જીવ બચાવી લે છે। તો આવા વ્યક્તિના જે આવું સાહસભર્યું કાર્ય છે એને શું કહેવાય? એને જ સાહસ કહેવાય। ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ આવો જવાબ આપ્યો। નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી જેમણે સવાલ કરે છે, પ્રશ્નકર્તા તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन, ये लंदन की स्कूल है, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल है जिसका विद्यार्थी है तरुण पटेल और 8वीं कक्षा में यानी कि 8मा ધોરણમાં એ વિદ્યાર્થી ભણે છે। કોણ? તો કે તરુણ પટેલ, જેમણે એવો પ્રશ્ન કર્યો ડૉક્ટર એપીજે કલામ से, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, ऐसा सवाल किया। और डॉक्टर कलाम इसके जवाब में, इसके प्रश्न का उत्तर किस तरह देते हैं तो कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम ये जवाब दिया। तो यहाँ पर जो ये विद्यार्थी हैं ये डॉक्टर कलाम को सवाल करता है और उस विद्यार्थी के सवाल में एक शब्द आया है तो कि प्रवासी शब्द आया है। प्रवासी यानी कि इसका मतलब क्या होता है तो कि जो हमारे प्रवासी भारतीय, तो जो हमारे देश के निवासी हैं, मतलब कि हमारा देश जिसके मूल हैं, जिसका मूल है हमारे देश के मूल वतनी हैं, जो दूसरे देश में बसवाट कर रहे हैं और इन लोगों को प्रवासी भारतीय कहते हैं। और इनकी मातृभूमि क्या है तो कि हमारा देश भारत देश इनकी मातृभूमि है। और ये उनका सवाल है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, यानी कि कैसे उसको विकसित करें, ऐसा सवाल है। तो प्रवासी भारतीय यानी कि हमारे देश में जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक कंपनी के केस लड़ने के लिए कई वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। तो उनके वापस लौटने का जो समय है 9 जनवरी 1915, तो उस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की सदा के लिए भारत में आए थे। तो उसी दिन को ये जो प्रवासी भारतीय दिन है उसकी रचना, इस दिवस को एक त्यौहार के रूप में हम विकसित करने के लिए उन्होंने हमारे देश के जो नेता हैं जिन्होंने ऐसा त्यौहार मनाने का सोची है, उस दिन को मनाने का सोचा है। लेकिन क्यों इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिन का दिवस के रूप में मनाया जाए? तो कि ये जो महात्मा गांधी 1915 को 9 जनवरी के दिन
सदा के लिए भारत में आ गए थे। तो हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के दूसरे देशों में उसका प्रचार प्रसार करने की, हमारे देश की संस्कृति में इतनी अच्छाइयाँ हैं, उसको दूसरे देश के लोगों को भी समझ में आए। और किस तरीके से समझ में आए, कैसे समझ में आए, तो कि जो हमारे देश के लोग दूसरे देश में बसे हैं उस लोगों के माध्यम से उन लोगों को, विदेशी लोगों को उसकी, हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी पहचान कराई जाए और वो भी हमारे देश की संस्कृति के प्रति आकर्षित हो और हमारे देश में घूमने फिरने के लिए आए और हमारे देश में रोजी रोटी, हमारे देश में बसे जो लोग हैं उसकी रोजी रोटी पैदा हो, रोजी रोटी की तक को अधिक पैदा हो। इसीलिए इस दिन को मनाने का सोचा है। तो अब हम इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, क्योंकि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। यानी कि किसी भी देश में जाके जो भारत का लोग बसे और ये क्या है लोग, तो कि एक बृहद भारतीय परिवार का ये अंग है। दूसरे देश में चला जाए तो भी ये मूल भारतीय का एक अंग है, ऐसा कहा गया। और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत यानी कि धरोहर, हमारे देश की संस्कृति की धरोहर के रूप में ये लोग हैं। विरासत यानी कि धरोहर, और इस सांस्कृतिक धरोहर पर इन्हें गर्व होना चाहिए। और सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी भूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो हमारी भारत देश की मातृभूमि है, ये भारत देश है, उसकी भूमि के साथ एक अच्छी तरह से आप जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी कि ये बात कैसी है, तो कि आपके लिए गौरव की बात है, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। ये मुंगेर का रहवासी है और मुंगेर स्कूल में अभ्यास करता छात्र है और उनका नाम है सत्यम और 10वीं कक्षा में अभ्यास करता है। उन्होंने डॉक्टर कलाम से क्या सवाल किया कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं और हमारे लिए आपका क्या संदेश है? ये विद्यार्थी डॉक्टर कलाम से सवाल करता है और डॉक्टर कलाम इस बालक को कैसा जवाब देते हैं? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यहाँ पर ये जो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है जिन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी इस राष्ट्र के निर्माण के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण बात है और हम उन्हीं परिवारों से आते हैं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं किसान, मजदूर और कलाकार, दस्तकार ये जो सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। किसान, अगर किसान इसको समझे तो किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश की जनता को खाने का खोराक, किसान जब शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો આ जो ખેડૂત છે એને કિસાન કહેવાય છે। એ ખેડૂત જ્યારે એ ખેતી કરે છે અનાજની ખેતી કરે છે અને અનાજ એમાંથી પેદા કરે છે, એ અનાજ ના પેદા કરે તો અમારા દેશ માટે ખાવાનું ખોરાક માટે એ અનાજ પૂરું પાડી શકે નહીં। એ એટલા માટે એ અભિન્ન અંગ કહેવાય છે। અતૂટ, અભિન્ન એટલે કે અતૂટ અંગ છે। और एवी ज रीते आज मजूर है, ये मजूर व्यक्ति कोई भी इमारत आपणे बनावानी है, बिल्डिंग बनावानी है, आपणे बिल्डिंग ने ऊभू करवानी है, तो एकला कारीगरों थी ये शक्य बनशे नहीं। एना माटे मजूर पर एक आवश्यक अंग है। ये मजूर ना होय तो
એકલો કારીગર એ બિલ્ડિંગને ઊભી કરી શકે નહીં. એવી રીતે આ કલાકાર છે એ પણ કોઈ બી ક્ષેત્રમાં, સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કે ફર્નિચર, જ્યારે લાકડામાંથી કોઈ કોતરણી કરીને કોઈ ચીજ એનું નિર્માણ કરવાનું છે, એવી રીતે પથ્થરમાંથી કોતરીને શિલ્પકાર, દસ્તકાર એ પથ્થરમાંથી એક મૂર્તિનું નિર્માણ કરે છે. એ પણ આપણા દેશનું અભિન્ન અંગ છે. જ્યારે આ બધા જ અંગો એક સાથે જોડાય છે ત્યારે એક સારી કૃતિ, યાની કે કોઈ બી બિલ્ડિંગ છે, એ બધા બિલ્ડિંગ છે એ એક ચીજનું નિર્માણ થાય છે. આ બધા એક સાથે જોડે છે. તો એવી રીતે આ રાષ્ટ્રના, એક સારા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવા માટે આ બધા જ અંગોની આવશ્યકતા, જરૂરિયાત પડે છે. આ બધા જ અંગો મળીને એક સારા રાષ્ટ્રનું આપણે નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. બધા જ રાષ્ટ્રના આજે રાષ્ટ્રના એક વ્યક્તિ, આ કિસાન, ખેડૂત છે, મજૂર છે, કલાકાર છે, શિલ્પકાર, આ બધા જ વ્યક્તિઓ એક સાથે મળીશું તો જ એક સારા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થઈ શકશે. સારી સેવા આપણે ઊભી કરી શકીશું. આવું ડૉક્ટર એપીજે કલામનું કહેવું છે. અને આ બધા જ પોતપોતાના ક્ષેત્રની અંદર, પોતપોતાના એટલે જે ક્ષેત્રમાં ખેડૂત છે તો એની ખેતીને લગતી જે કારીગરી છે એમાં એ ખૂબ વિકાસ કરે. મજૂર છે તો એ મજૂરના ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરે. કલાકાર છે તો એ કલાકાર કોઈ બી ક્ષેત્રમાં, નાટ્ય ક્ષેત્રમાં, એ જે અભિનયના ક્ષેત્રમાં, રાજકારણના ક્ષેત્રમાં એ જે પોતપોતાની ખૂબી છે એનો વિકાસ કરે તો આપણા દેશનો વિકાસ થશે. બધાનો એક સાથે મળીને આપણા દેશનો વિકાસ થશે, એવું ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામનું કહેવું છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કરતા रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा, यानी कि ये जो इटावा की कॉलेज है, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा की कॉलेज का ये स्टूडेंट है. ये स्कूल है, कॉलेज नाम पीछे जोड़ दिया गया है. कक्षा 11 यानी कि ये इस स्कूल का ये विद्यार्थी है. और उन्होंने सवाल किया कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी. यानी कि ये प्रश्न करता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, परंतु ये जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या, निरंतर यानी कि सदा हमेशा के लिए ये जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या इसे संभव होने देगी, ऐसा सवाल करते हैं इस छात्र. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं इस सवाल के जवाब में? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है. ये जो विकास है ये स्वयं जनसंख्या को वृद्धि से रोकने की अचूक औषधि है, एक औषधि भी है ये. इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये जो विकास है, ये विकास हमारा देशનો જે વિકાસ છે એ ખુદ વિકાસ એ પોતાની જનસંખ્યાને અટકાવી શકશે. જનસંખ્યાને અટકાવવા માટેનો ઔષધિ દવારૂપ આ વિકાસ છે. જનસંખ્યાને આપણે કેવી રીતે અટકાવી શકીએ? તો ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ એવો જવાબ આપે છે કે એમાં પ્રમુખ મહત્ત્વનું સ્થાન જો છે એ સ્ત્રી શિક્ષા. સ્ત્રીને જો શિક્ષણ આપવામાં આવશે તો સ્ત્રી એ જનસંખ્યાને અટકાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. અને જ્યારે આપણે जनसंख्या ने अटकाववा माटे एक छोटा परिवार सुखी परिवार की जो सूत्र है एने आपणे बळ आपीशुं, ये सूत्र ने आपणे मान्यता आपीशुं, बळ आपीशुं अने आपणे पण
કે એક છોટો પરિવાર, એક નાનો પરિવાર સુખી પરિવાર, નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ, એવી ભાવનાને આપણે વિકસિત કરીશું, એવું આપણે દરેક વ્યક્તિ મગજમાં ગાંઠ પાડી લઈશું અને વસ્તી વૃદ્ધિને અટકાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તો ભારત અવશ્ય એક વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપમાં ઉભરીને આવશે અને 2020નું જે મિશન છે એમનું જે મગજમાં ફિટ કરેલું છે કે 2020 સુધીમાં ભારત વિકસિત રાષ્ટ્રના રૂપમાં ઉભરી આવશે, એવું મગજમાં એક મિશન એમને ધ્યેય નક્કી કરેલું છે. તો એ મિશનને આપણે પાર પાડીશું અને એ મિશનની અંદર યુવાન વ્યક્તિઓ જે છે એમને રોજગારીનો અવસર મળી શકે, મોકો મળે એવો આપણે અવસર પેદા કરીશું. કેવી રીતે પેદા કરીશું? તો કે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં, એ જે ગ્રામીણ ઇલાકા છે ત્યાં આપણે ઉદ્યોગ ધંધા સ્થાપીશું, ઉદ્યોગો ઊભા કરીશું, એવા ગૃહ ઉદ્યોગો ઊભા કરીશું કે જેમાં આ જે યુવાનો છે એમને રોજગારી મળી શકે, એ આ ઉદ્યોગોની અંદર કામ કરશે અને એમને રોજગારી મળી શકશે, जिसमें उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. यानी कि उद्योग धंधा આપણે સ્થાપીશું અને એ ઉદ્યોગ ધંધાની અંદર, ઉદ્યોગોની અંદર એ યુવાનોને આપણે રોજગારી ઊભી કરીશું. તો ડૉક્ટર કલામ આવી રીતે વસ્તી વૃદ્ધિને અટકાવીને વિકાસ કરીશું અને 2020નું મિશન એને આપણે સાકાર કરીશું, એવો પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે सवाल 12 के और डॉक्टर कलाम के इस इकाई के बारे में यहाँ तक अभ्यास करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. अस्तु.